ہماری یہ جو نئی آیت ہے، آیت نمبر 104 سورہ البقرہ کی، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی وعید سنتے ہیں کافرین کے لیے۔ یہ وعید کیوں دی گئی؟ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس آیت کو دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اس وعید کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگوں جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا نہیں، تقولو تم کہو، راعینا ہمیں ہماری رعایت کریں، وقولو اور تم کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجیے، واسمعوا اور سنو، وا اور للکافرین کافرین کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ اے ایمان والوں، مخاطب کیا جا رہا ہے لوگوں کو، ایمان والوں کو، اے ایمان والوں، تم رائنا یعنی ہماری رعایت کرے نہ کہو، بلکہ انظرنا ہماری طرف نظر کرم کیجئے کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں۔ یا ایوہا، پہلے ہم اس کو دیکھیں گے صرف، ٹھیک ہے؟ یا حرف ندا ہے، کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب یا ایوہا کے ساتھ قرآن پاک میں کوئی چیز آتی ہے، میم اس کا آواز مطلب نہیں آ رہی مجھے۔ آواز نہیں آ رہی؟ میم آ رہی ابھی ہے آئی ہے۔ میم، آواز نہیں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں، آ رہی تھی۔ شاید آنسا کی طرف نیٹ کا ایشو ہوگا۔ یا حرف ندا ہے، اور قرآن پاک میں جب یا سے مخاطب کیا جاتا ہے تو آگے دیکھنا چاہیے کہ کیا حرف آ رہا ہے۔ اگر یا کے فوراً بعد کوئی نام آ رہا ہے، کوئی قوم آ رہی ہے، تو سیم اسی طرح ہوگا۔ لیکن اگر ایوہا آ رہا ہے تو یہ ایک ضمیر ہے، ٹھیک ہے؟ ایو جو ہے ایک ضمیر ہے، اور یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ متوجہ کرانے کے لیے جب کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے نا، تو ضمیر کو سب سے پہلے لے کے آیا جاتا ہے ایو کی جگہ سے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ایاک نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ خاص متوجہ کرنے کے لیے ضمیر لائی جاتی ہے، اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ آپ اس کو بھی زور نہ دیجیے گا اس کے اوپر، اس کو آگے ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے۔ یہ ایوہا جو ہے نا، ضمیر ہے مذکر کی، اگر آگے آنے والی چیز مونس ہوگی تو یہ ایتوہا ہوگی۔ جیسے ہم نے سورہ الفجر میں دیکھتے ہیں، یا ایتوہ النفس المطمئنہ، اس کا مطلب ہے نفس جو ہے وہ مونس ہے۔ یہاں پہ چونکہ خطاب الذین لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان لائے، وہ مذکر کے صیغے میں ان سے بات کی جا رہی ہے، اس لیے ایوہا کی ضمیر لائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایوہا حرف ندا ہو گیا یا، اور ایوہا کو ہم اس پورے کو ہی حرف ندا رکھیں گے۔ آواز کن کو دی جا رہی ہے؟ الذین کو، اے لوگوں جو، تو یہ الذین اس کے لیے منادا ہوگا، ان کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الذین جو ہے یہاں پر ال سے معرفہ یا نون سے جمع۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موصول ہے، اور اسم موصول جو ہوتے ہیں وہ سارے مبنی ہوتے ہیں، اور تمام کے تمام ہی معرفہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آمنو ایمان لائے ہو، اب ان لوگوں سے خطاب شروع ہو رہا ہے جو ایمان لائے تھے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر غائب ہے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، امن میں آ جانا۔ ایمان والوں سے جب خطاب ہوا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب کرام کان کھڑے کر لیتے تھے، اب یعنی کہ اب ان لوگوں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ زیادہ تر بات چیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوا کرتی تھی، لیکن جب ڈائریکٹ خطاب ایمان والوں سے ہوتا تھا تو پھر تمام اصحاب، تمام مسلمان متوجہ ہو جایا کرتے تھے کہ اب ہمارے لیے یہ بات ہے۔ لا تقولو نہ تم کہو، یہ لا جو ہے ایک تو اس کے بعد تا آ رہی ہے، یہ نشانی لائی نہیں کی ہے، اور دوسرا یہ لا جو ہے یہ مضارع کو مجزوم کر رہا ہے۔ اصل میں یہ تقولون تھا، ٹھیک ہے؟ تقولون، لیکن لائے نہیں نے کیا کیا، اس کا نون اعرابی ڈراپ کر دیا، اور اس کو دیکھیے یہ جزم دے دی، تو اب یہ مضارع جو ہے مجزوم ہو گیا ہے لائے نہیں کی وجہ سے۔ لائے نہیں
जब भी आता है ना, किसी काम से मना करने का हुक्म होता है। आप तर्जुमे में भी देख सकते हैं, ना तुम कहो, यानी कि नफी, हुक्म नफी होता है। काम करने का हुक्म फेले अम्र होता है, लेकिन किसी काम से रोका जाए तो हुक्म नफी आता है, जो कि ये लाई नहीं हमें बताता है। ना तुम कहो, तकूलू, ता शुरू में फेल है, फेल की अलामत है, और फेल है मुजारे का। लेकिन चूंकि ये अमर में आ गया है, तो ये फेले अमर कहलाएगा, हुक्म दिया जा रहा है अब, ठीक है। ता शुरू में तुम सब के लिए आएगा, वाओ आखिर में वाओ अलिफ जमा के लिए आएगा। फेल मुजारे का मजजूम हुआ है, और साथ ये फेले अमर है, ये हुक्म दिया जा रहा है, ना तुम कहो। जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है, काफ वाओ लाम इसका रूट वर्ड है, राइना। राई पहले एक लफ्ज है, इसको देखिए, राई, इसका याय जो मुतकल्लिम एक था, राई, आइन छोटी है, आई, लाए नहीं ने उसको ड्रॉप किया, उसको भी ड्रॉप किया, ठीक है। राई, हमारी रियायत। हमारी यहाँ पे ना के साथ तर्जुमा आ रहा है, राई का मतलब है रियायत करें, ठीक है। रियायत करें ना, हमारी, हमारी रियायत करें। रा, आइन और छोटी या इसका रूट वर्ड है, रा, आइन, छोटी या। रियायत करना, अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे तो ये होता है कि हमें, यानी कि छूट दे देना, ठीक है ना, निकाल देना किसी चीज से, हमारी रियायत ना करें, हमें छूट ना दें। वकूलू, और तुम कहो, दोबारा हुक्म दिया जा रहा है, फेल है अमर का, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है, काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। उन्जुर ना, उन्जुर एक फेल आ गया, फेल माजी का, और वाहिद मुजक्कर हाजिर, उन्जुर फेल अमर, और ये ना इसके साथ जुड़कर आ रही है, जमा मुतकल्लिम की जमीर, उन्जुर ना, हमारी तरफ नजरे करम कीजिए। चूंकि ये जब इसको भी फेले अमर में लेंगे ना, तो ये वाहिद मुजक्कर हाजिर आएगा, उन्जुर इतना सा, ठीक है। और ना इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है, फेल के साथ जमीर जुड़कर आएगी तो वो मफूल बनेगी उस फेल के लिए। उन्जुर ना, हमारी तरफ नजरे करम कीजिए, ये भी हुक्म के मायने में आ गया, इसलिए ये फेले अमर है। नून वाल रा, नून वा रा इसका रूट वर्ड हो गया। नजर, नजर वो होती है जो बसारत, यानी आंख, एक बसारत होती है, एक नजर होती है। नजर वो होती है जो हमारी आंखें अपने सामने रियल इमेज देखती हैं, ठीक है। और बसारत हमारी दिल से भी देखने को कहते हैं, दिमाग से भी देखने को कहते हैं। ये नजर में और बिसारत में फर्क है। वस्माऊ, मैम और मैम राइना जो है ये क्या बनेगा यहाँ पे? राइना पूरा फेल है ना, राइना, राई मीन इतना आएगा तो फेल अमर आएगा, हमारी रियायत करे ना, ठीक है। इसके साथ भी मफूल बनकर आएगा। ठीक है मैम। राइना इसके साथ भी सेम वैसे ही जैसे उनजूर बनेगा, और ना इसके साथ मफूल बनेगा, ठीक है। ये देखिए ना, ठीक है मैम। राई था जो कि पूरा था फेल अमर, वाहिद मुजक्कर हाजिर, ना की जमीर इसके ठीक है। साथ जुड़ी, फेल के साथ कोई जमीर जुड़ेगी उसका मफूल बनेगी, इसम के साथ सही। जुड़ेगी तो मुरक्कब इजाफी। वस्माऊ, और सुनो, हुक्म दिया जा रहा है, वाव हरफ आतफ है। सॉरी मैम, ये वकूलू क्या बना था? ये भी फेल अमर है? हाँ कहो, हुक्म दिया जा रहा है ना, वाकूलू फेल अमर का है, जमा मुजक्कर हाजिर, क्योंकि मुजारे के हाजिर की सीगों से बनता है ना, तो ये हाजिर ही के सीगे बनते हैं। और ये बावजूद इसके कि इसमें अलामत मुजारे नहीं नजर आ रही है आपको, लेकिन इसके मीनिंग्स में आपको हुक्म नजर आ रहा है, ठीक है। अलामत मुजारे ड्रॉप हुई भी है। वाव हरफ आतफ है, कूलू तुम कहो, तुम सब कहो, ये तुम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये माजी नहीं हो सकता। अब अगर इसी सीगत को जब हम माजी में देखते हैं ना, तो काला काला कालू, उन्होंने कहा बनता है कालू। लेकिन अगर ये अमर में होगा ना, हुक्म में होगा, तो होगा कूलू, तुम कहो, तुम सब कहो, ठीक है। जी। वस्माऊ, और सुनो, सीन मीम आइन समाअत,
वो चीज जो कानों से सुनी जाती है, इसको तवज्जो भी कहते हैं। इसको बहुत, यानी कि दिल लगा के जो चीज सुनी जाए ना तवज्जो के साथ, उसके लिए ये मायने आएंगे। यहाँ पे भी वाव हरफ अतफ है, और इस्माऊ जो है फेल अमर है। हुक्म दिया जा रहा है, जमा है, मुजक्कर है, हाजिर है। यहाँ पे देखिए कितने हुक्म जो अल्लाह ताला ने जमा किए हैं एक आयत के अंदर। पहले तकूलू ना कहो, और फिर उसके बाद हुक्म दिया जा रहा है कि कहो। ठीक है ना? ना कहने का भी हुक्म है और कहने का भी हुक्म है। अमर और नहीं दोनों एक जुमले में आ रहे हैं। वाह, और वाव हरफ अतफ है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए। ली लाम में जारा है, लाम के नीचे जो जेर नजर आ रही है ये लामे जारा है। और अल काफिरीना इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी बनेगा। देखिए अल काफी रूना था असल में, जो कि हालत रफा थी। जब वो हालत नसब और जर में जाएगा ना, तो अल काफिरीना बन जाएगा, और जर में भी अल काफिरीना ही रहेगा। तो यहाँ पे हम इसकी हालत को कैसे डिफाइन करेंगे? ली हरफे जर की वजह से। अगर ये ली हरफे जर मौजूद है, तो बाद में आने वाला इसम लाजमी मजरूर होगा। ठीक है? तो ये का फारा रूट वर्ड के साथ या नून जमा की निशानी है, और ये हालत जर में है, क्योंकि जार प्लस मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी बनाते हैं। अजाबुन अजाब, आइन लाल बा, ऐसी कैफियत जिससे मुंह के अंदर जुबान जो होती है ना, प्यास की शिद्दत से सूख के कांटा बन जाए। वो तकलीफ दे सूरत हाल, जैसे एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिन की प्यास हो, जुबान मुंह के अंदर अकड़ चुकी हो, हिलने के काबिल ना हो, तो वो कितनी तकलीफ दे सूरत हाल होगी। लेकिन जब इसके साथ अलीमुन भी आ गया, तो अब इस शिद्दत का कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता। दर्दनाक अजाब। एक तो अजाब ऑलरेडी ही इतनी तकलीफ दे चीज है, लेकिन अगर वो दर्दनाक होगा तो आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए कितनी सख्त यहाँ पे वईद का जिक्र किया है। हमजा लाम मीम इसका रूट वर्ड है। अलीमुन, अजाबुन मौसूफ है, अलीमुन उसकी सिफ्त है। अजाब है, कैसा अजाब है? दर्दनाक अजाब है। तो ये मौसूफ और ये सिफ्त मिलके मुरक्कबे तौसीफी बन गए। ठीक है? एक चीज दूसरी की सिफ्त बयान कर रही है ना। मौसूफ जो होगा उसकी सिफ्त क्या है? कि दर्दनाक है। तो इस तरीके से मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न पूरा होगा। अगर आप इसको बाकी तमाम चीजों में भी देखें, दोनों मरफू हैं, दोनों मुजक्कर हैं, दोनों नकरा हैं। तो इस वजह से भी एक जो है मौसूफ है और एक सिफ्त है। तो हम इसको मुरक्कबे तौसीफी के पैटर्न में लेते हैं। ये मुरक्कबे तौसीफी जुमले का हिस्सा भी बनते हैं। ठीक है? मुरक्कबे तौसीफी जुमले में मुब्तदा भी बन सकते हैं, जुमले में खबर भी बन सकते हैं, जुमले में फाइल भी बन सकते हैं, जुमले में मफूल भी बन सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने लोगों को मना भी किया, क्या कहने से? राइना कहने से। ये राइना क्या चीज थी? क्यों मना किया गया लोगों को कि राइना ना कहें? असल में रब्त कलाम है। यहूदी जो थे ना, वो जिब्रील अमीन और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और पहले के अंबिया यानी तमाम अंबिया के गुस्ताख थे। और वो अपनी इसी अभी तक भी हैं, हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने उनको गुस्ताख बना दिया। और अपनी इसी आदत की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी गुस्ताखियां करते थे। ये अहले जो यहूद थे ना, तमाम के तमाम, वो ना सिर्फ खुद अकेले ये काम किया करते थे, बल्कि उस दौर के जो थे वो क्रिश्चियंस, उनको भी अपने साथ मिला लेते थे। क्योंकि क्रिश्चियंस के नजदीक वो बहुत मोतबर थे, जो कि उनको गुजरे हुए वाकयात का हाल बताया करते थे, या आलिम थे बहुत बड़े। और फिर इसकी सजा अल्लाह ताला ने जहन्नुम करार दी। हर जबान में कुछ ना कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जो दूसरी जुबान से मिलते जुलते हैं, हम आवाज होते हैं। बाज औकात उनमें सिर्फ एक जेर जबर का फर्क होता है। बाज औकात थोड़ी सी आवाज को या लंबा कर देने से मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। हम अपनी उर्दू जुबान की मिसाल ले लें अगर, तो चोरी एक लफ्ज है। चोरी के ऊपर अगर हम सिर्फ एक पेश का इजाफा कर देते हैं, मुंह को थोड़ा सा तंग करके इसको बोलते हैं चूरी।
तो सेम लफ्ज बेटा अलग ठीक बन है। जाएगा। ठीक, आवाज आ रही है मेरी? गंदा हुआ है यार अपने ये। माइक म्यूट कर लीजिए सब। तो अरबी के जो अल्फाज थे ना वो अबरानी जुबान से बहुत ज्यादा मुमासलत रखते थे, और उनमें एक लफ्ज था राइना। राइना, जब अब इसको खींच के अदा किया जाता था ना, आइन को खींच लिया जाता था, तो वो बन जाता था राइना। तो इससे मायने क्या बन जाते थे? अहमक, उज्जड़, चरवाहा। तो मुसलमानों की इज्जत, इस्लाम की अजमत और रिफत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम, नबी पाक की एहतराम में रोज बरोज इजाफा देख के यहूदी अपने दिलों में कुढ़ते थे, तकलीफ महसूस करते थे, और अपने दिल की भड़ास निकालने का कोई भी मौका जाने नहीं देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब वो लोग आपकी मजलिस में आते, तो गुफ्तगू के दौरान आपको राईना कह के मुखातिब करते, और ये तासुर देने की कोशिश करते कि हमें समझ नहीं आई। यानी इसका मीनिंग्स क्या था? राइना, राइना का मतलब था, मतलब रियायत कीजिए, यानी इस बात को डिटेल से बताइए, या हमें ना समझ नहीं आ सकी ये बात। लेकिन अगर इसी राइना को खींच देते थे, तो अपने दिल की भड़ास निकाल लेते थे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्ला उजड़, गवार, चरवाहे जैसे अल्फाज से मुखातिब करते थे। तो आम इंसान को तो ये, मुसलमानों को तो बसा औकात मुसलमानों के ये जो थे ना, ये समझ नहीं आती थी। ठीक है, फहमे कलाम के लिए मुसलमान भी आपकी खिदमत में राइना कहना शुरू हो गए। उनकी देखा देखी कि ये जाहिर है, अगर हमें भी कोई लफ्ज नहीं आएगा, तो वो अबरानी जुबान का लफ्ज राइना इस्तेमाल करने लगे। लेकिन जाहिर है उनका तो उनकी सोच में और उनकी अदायगी के करने में जमीन आसमान का फर्क था दोनों में। सहाबा का मकसद तो ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा आहिस्ता बोलें, रियायत करें, ताकि हमें उनके फरमान आसानी के साथ समझ आ जाए। लेकिन यहूदियों का तो एक प्रोपेगंडा था ये, बाकायदा तौर पे, कि वो अल्लाह के नबी की तजलील करने के लिए उनको राईना से जो पुकारा करते थे। तो अल्लाह ताला तो हर चीज जानते हैं। और फिर क्या करते? वो यहूद क्या करते थे? एक तो अल्लाह के नबी को ऐसे बुलाते थे, फिर अपनी जो उनकी महफिलें होती थी ना, अपनी मजालिस होती थी, वहां पे जाके मुसलमानों का मजाक उड़ाया करते थे कि देखो ये कितने बेवकूफ हैं, वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसका इन्हें मतलब ही नहीं पता। इसीलिए तो हम कहते हैं कि भेड़ चाल के पीछे कभी नहीं लगना चाहिए। कभी हमें भी किसी चीज की समझ ना हो, कभी भी उस चीज को यूज नहीं करना चाहिए जब तक आपको उसके बारे में पूरी मालूमात ना हो। यहाँ पे यही होता था। तो इस मौके पे इरशादे खुदाबंदी हुआ कि ए मुसलमानों, अब इसके बाद जुमानी लफ्ज को छोड़कर हमेशा के लिए इस लफ्ज को छोड़ दो, और एक बिल्कुल सिंपल सीधा लफ्ज इस्तेमाल करो, उन्जुरना। ठीक है, जिसके मायने क्या हुए कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तरफ नजरे उल्फत फरमाइए। ये था इज्जतदार तरीका। फिर जो कुछ आपकी जुबान अक़दस से जारी हो, उन्हें पूरी तवज्जो के साथ सुने और इखलाक के साथ सुने। ये जो है ना, वस्माऊ, यानी कि अल्लाह के नबी की बात को तवज्जो के साथ सुनना है। वस्माऊ का लफ्ज इस्तेमाल करके ये इशारा भी दिया गया है कि दौरान खिताब मुतकल्लिम को टोकना, ये अदम तवज्जो की दलील हुआ करता है। बाज लोग जो है ना, वो नसीहत नहीं लेते किसी चीज से, बल्कि सिर्फ एक टोकने के लिए होते हैं मुतकल्लिम को, बात करने वाले को, कि किसी तरीके से इसके, यानी अल्लाह की बात जो भी हो रही है उसको कलाम के बजाय उस कलाम को तोड़ दिया जाए बीच में, ताकि वो एक होती है ना कंटिन्यूअसली आपकी तवज्जो, वो खत्म हो जाए। उनका मकसद भी यही होता था। तो अल्लाह ताला ने सामे के लिए फर्ज किया है कि वो दूसरे के कलाम को इस तरीके से, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में हो, इतनी तवज्जो के साथ सुने कि उनको बार बार इस्तग़फ़ार करने की जरूरत ना पेश आए। इस आयत में यही फरमाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को अदम तवज्जो से, बदनियती के साथ सुनने के बजाय, वस्माऊ, बहुत तवज्जो के साथ, हमतनगोश होकर सुनना चाहिए। ये भी इंतबा फरमा दिया कि रसूल खुदा की गुस्ताखी करना कुफर है। आप देखिए ना, ये तमाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जा रहा है, और साथ ही फिर उनकी नाफरमानी करने वाले के लिए कितने सख्त
दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई। एक तो उनको काफिर कह दिया गया, ठीक है ना, चाहे वो मुसलमान भी है, अगर वो ये काम कर रहा है, ये अमल कर रहा है, और इसके दिल में कहीं भी थोड़ी सी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हतक मौजूद है, तो वो काफिर है। बाइबल में भी देखिए इसी तरीके से लिखा है कि उसने शराब पी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में, मैं खाने में आ गया, अपने डेरे में बरहना हो गया। यानी कि अब ये चीज बताती है कि उनकी किताबों में भी वो तहरीफ अपनी मर्जी से कर चुके थे। ठीक है, इसी तरीके से कई ऐसी बातें हमें बाइबल में मिलेंगी और दूसरी किताबों में भी मिलेंगी जिनकी तहरीफ हो चुकी है, वो अपनी असल से हट चुकी हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया कराम की हतक करने वाले, तमाम अंबिया कराम की बेइज्जती करने वाले वो काफिर हैं। अल्लाह ताला ने उनको दायरा इस्लाम से बाहर करार दिया है।